ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವಂತಹ ನಾರಂಜ express.com ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಮುದಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಒತ್ತಾಯ. ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ 112ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಭಾರತಿ ಭೀಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ದಲಿತ ಪರ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಒತ್ತಾಯ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ದಲಿತ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲೂ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ದೀನ ದಲಿತ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ 112ನೇ ಜಯಂತಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೀಮ್ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ನಡೆದಿರುವಂತ ಏನ್ ಏರಿಯಾಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಓಡಾಡಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದುಡಿದು ದೀನ ದಲಿತ ಬಡವ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾನ್ ನೇತಾರ ಬಿ ಶಾಮಸುಂದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಹಾಸ್ಮಿ, ಅಶೋಕ್ ಮಾಳ್ಗೆ, ಸುರೇಶ್ ಟಾಳೆ, ಸುರೇಶ್ ಢೋಳೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು, ವರದಿಗಾರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರು, ಆನಂತರ ಡೊಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷೆ ಅವರು ಈ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. तावेल्लरू पत्रकार भाइयों को इस पत्रकार परिषद में सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आने वाले 10 जनवरी रविवार के दिन बी शामसुंदर जी का 112वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने पत्रिका कार्यक्रम को आयोजन किया है। साथियों, बी शामसुंदर भारत के शोषित समाज के बहुत बड़ा नेता थे।
बी श्याम सुंदर जी बाबा साहब के समकालीन थे और पेरियार के समकालीन थे। जिस तरह बी श्याम सुंदर इस देश के शोषित समाज के लिए काम किए, वो ब्रिटिश इंडिया का जो प्रांत था उस प्रांत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जो शोषित समाज के लिए काम करते थे बिफोर इंडिपेंडेंट, उसी तरह बी श्याम सुंदर जो हमारे देशीय संस्थानों में बड़ा संस्थान हैदराबाद संस्थान था, उसके अंदर बी श्याम सुंदर साहब जो शोषित समाज के लिए, शोषित समाज का आवाज बनकर जो मानवता के लिए समतामूलक समाज निर्माण करने के लिए वो बहुत बड़े काम किए हैं। उस नेता का 112वीं जयंती हम बीदर के कुछ साथी मिलकर जो बी श्याम सुंदर जयंती आयोजन समिति बनाकर आज हम बी श्याम सुंदर साहब का बड़े पैमाने पर जयंती का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने जो बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के जो परिवार के लोग हैं, उन परिवार के लोगों को हमने बुलाया है। खास तौर पर बी श्याम सुंदर के भांजे नरसिंह राव हैदराबाद से वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। दूसरा, जो अन्नाभाऊ साठे हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े साहित्यकार रहे शोषित समाज के, उनके परिवार से विलास साठे जी इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। उसी तरह जो दादा साहब कांसीराम साहब के भांजे प्रभजीत सिंह, उन्होंने पंजाब से आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। तो ये कार्यक्रम हमने रंगमंदिर के अंदर 2 सेशन के अंदर हमने आयोजित किया है। सुबह का सत्र है, उस सत्र के अंदर बहुत सारे विद्वान लोग उसके अंदर अपना बात रख रहे हैं बी श्याम सुंदर के बारे में। और हैदराबाद संस्थान में जो आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसके लिए ये सुबह का सत्र में जो वक्तागण है, बहुत सारे वक्ता उस अंदर बात करने वाले हैं। और उस सुबह का सत्र का अध्यक्षता कर रहे ताराराम मेहना, जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राजस्थान से आ रहे हैं। ये सुबह का सत्र का कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं। फिर बाद में दोपहर का एक सत्र है। दोपहर का सत्र में बीडी बोरकर साहब है, जो पीपीआई डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नागपुर से आ रहे हैं। तो दोपहर का जो सत्र है, उस सत्र का अध्यक्षता बीडी बोरकर साहब कर रहे हैं। ये 2 सत्र का कार्यक्रम हमने किया है, आयोजित किया है। फिर इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने, जो जयंती आयोजन समिति के लोगों ने निर्णय किया है कि मूल भारत भीम रत्न अवार्ड देने का। ये मूल भारत भीम रत्न अवार्ड उन लोगों को हम दे रहे हैं जिसमें जो फुले अम्बेडकर मूवमेंट में, जो शोषित समाज का जो मूवमेंट इस देश में चला, उस मूवमेंट में जो लोग काम किए हैं, ऐसे लोगों को हम मूल भारत भीम रत्न अवार्ड दिए हैं। उसके अंदर हम प्रकाश मूल भारती जो है, आज हम एच श्रेष्ठकर का इस मंच बनाया है। ये एच श्रेष्ठकर के मंच को बनाने में जो एच श्रेष्ठकर थे, बी श्याम सुंदर जी का जो सारा लिटरेचर था उसको कलेक्ट करके रखा। वो उनके जो भांजे हैं प्रकाश मूल भारती, वो सारा लिटरेचर कलेक्ट करने की वजह से उनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया। फिर बाद में जो बी श्याम सुंदर जी के भांजे हैं नरसिंह राव, उनको भी हम लोगों ने ये अवार्ड देने में उनको भी सेलेक्ट किया है। फिर बाद में जो भीम सेना बनाई थी बी श्याम सुंदर साहब ने 1968 में, उसका फाउंडर ट्रेजरर एक्स एमएलसी मारुति डी माले है, उनको भी हमने सेलेक्ट किया। फिर फुले अम्बेडकरी मूवमेंट में आज हमारे साथ में बैठे जुल्फिकार हाशमी साहब है, उनको भी उस अवार्ड में सेलेक्ट किया गया है। तो 4 लोगों को हम मूल भारती भीम रत्न अवार्ड उस कार्यक्रम के अंदर दे रहे हैं। दूसरा, जो बी श्याम सुंदर के साथ में जो लोग काम किए हैं, साहित्य क्षेत्र में हो या मूवमेंट में हो, वो साथी आज भी जीवित है। उन लोगों को हम सम्मान कार्यक्रम भी उस कार्यक्रम में हमने रखा है, वो सम्मान कार्यक्रम भी रखा है। फिर दूसरा जो बात है कि ये जो मूवमेंट था बी श्याम सुंदर जी का, ये लिटरेचर के अभाव से ये बी श्याम सुंदर का आज उनका कहीं पर भी उनका नाम नहीं दिखाई देता है। लेकिन फुले अम्बेडकरी मूवमेंट में महापुरुषों की लिस्ट में बी श्याम सुंदर भी आते हैं। तो उनका लिटरेचर के अभाव के कारण आज उनका
कहीं पर नजर नहीं आता, उनका आंदोलन कहीं पर नजर आता नहीं आता। तो इसमें हम ये जो किताब है बी श्याम सुंदर, ये किताब समांतरा भारत के डायरेक्टर वरुण कुमार और हमारे मकसूद साहब जो बागसेव के साथी है, तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी है, तो वो दोनों ने मिलकर ये उर्दू में किताब छपा है बी श्याम सुंदर जी के बारे में। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इस किताब को हम लोगों ने कन्नड़ में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि जो बी श्याम सुंदर जो किताब लिखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री किए हैं, वो इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के अंदर है। इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के रहने की वजह से हमारे हैदराबाद कर्नाटक के लोग हो या कर्नाटक के लोगों को उनका लिटरेचर पढ़ने में नहीं मिला है। तो हमने पहली बार उस उर्दू किताब को कन्नड़ में हमने ट्रांसलेट किया है। ये हमारे बीदर के सीनियर जो साहित्यकार है किशन राव दिने, वो बी श्याम सुंदर का जो यहाँ पे बहुत बड़े उस टाइम में पस्ताकोम मदरसा एक पस्ताकोम स्कूल चलाते थे बिफोर इंडिपेंडेंट। उस स्कूल में किशन राव दिने पढ़े हैं और उर्दू अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने इस किताब को कन्नड़ में ट्रांसलेट किया, बी श्याम सुंदर ये किताब का नाम है, कन्नड़ में ट्रांसलेट किया। तो उस किताब का विमोचन भी उस दिन हम कर रहे हैं। बी श्याम सुंदर जी का जो किताब है उसका विमोचन भी कर रहे हैं। और बहुत सारा उनका आंदोलन का जो है साथी आंदोलन के बारे में प्रकाश मूल भारती भी कलेक्ट किए हैं, वो भी किताब जो है उसका भी विमोचन कर रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने अपना एक रेगुलेशन पास कर रहे हैं कि बी श्याम सुंदर जी का बारे में हमारे आने वाले जनरेशन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कारवा उन्होंने चलाया था। तो बी श्याम सुंदर जी के बारे में कुछ हम हकोताएं भी उस दिन कर रहे हैं, रेगुलेशन भी हम कर रहे हैं। वो पहला रेगुलेशन है कि बी श्याम सुंदर जी का जो मूवमेंट है, तो हैदराबाद कर्नाटक का जो हिस्ट्री हमको पढ़ाया जाता है कर्नाटक स्टेट के सिलेबस के अंदर, उस सिलेबस के अंदर जो हैदराबाद कर्नाटक का जो हिस्ट्री है उसके अंदर बी श्याम सुंदर जी का जीवन चरित्र और जो उनका पस्ताकोम मूवमेंट था, उस मूवमेंट को कर्नाटक गवर्नमेंट उस सिलेबस में डालना चाहिए। हमारा वो कार्यक्रम का एक हक होता है। दूसरा, जो बी श्याम सुंदर साहब उनका कर्मभूमि बीदर रहा, उनका कर्मभूमि बीदर रहने की वजह से उनके आने वाले जनरेशन को या उनका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। इसलिए जो बीदर का एयरपोर्ट बना हुआ है, वो बीदर के एयरपोर्ट को बी श्याम सुंदर जी का नाम देना चाहिए। हमारा इस जयंती के अवसर पर हमारा हक होता है। तीसरा मुद्दा है, जो बी श्याम सुंदर जी का बहुत बड़ा साहित्य है, जैसे बाबा साहब का साहित्य रहा, उसी तरह बहुत बड़ा साहित्य भी बी श्याम सुंदर का है। वो साहित्य को कर्नाटक गवर्नमेंट ने वॉल्यूम्स बनाकर, उसका एक कमेटी बनाकर वो वॉल्यूम्स जो है, किताब जो है, गवर्नमेंट के तरफ से छापना चाहिए। हमारा ये तीसरा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहने के वजह से हम कर्नाटक गवर्नमेंट से ये कर रहे कि बहुत सारे महापुरुषों का जो है गवर्नमेंट के तरफ से जयंती आचरण कर रहे हैं। तो बी श्याम सुंदर हमारे हैदराबाद संस्थान के अंबेडकर थे, वो इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट के तरफ से बी श्याम सुंदर का जयंती भी आचरण होना चाहिए। हम इस कार्यक्रम में कोताही कर रहे हैं। यही मुद्दा लेकर हम आने वाले 10 तारीख को हम जयंती के अवसर पर 2 सेशन में बहुत बड़े विद्वान आकर वहाँ पे 2 सेशन में बहुत चर्चा उस दिन होने वाला है। तो सभी बीदर के और तेलंगाना, स्पेशली तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद कर्नाटका, ये बी श्याम सुंदर का बड़ा एरिया रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंट 1956 के बाद ये हैदराबाद संस्थान हैदराबाद कर्नाटका, तेलंगाना और मराठवाड़ा के अंदर डिवाइड हुआ। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंट वो बी श्याम सुंदर और इनके सीनियर साथी BS वेंकटराव बहुत बड़ा मूवमेंट चला है। तो वो सारे मूवमेंट आज भी प्रभाव उस क्षेत्र में है। तो तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद का कर्नाटक के लोग इस जयंती के अवसर पर सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, ये टीवी चैनल्स के माध्यम से सभी देशवासियों को विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम में सारे लोग सहभाग हो और इस कार्यक्रम का लाभ उठाए, यही सबसे प्रार्थना करते हैं।